Okay, let's start. So, in the previous class, we have seen this one of the example of is SAC, successive approximation converter. Okay, so we have seen this example and how it converts the number we have seen, and we have observed that the digital output is always less than the analog input signal. Maybe that is a smaller value, but that is always the lesser side. So let's move, and I think we have seen this example as well. We have also seen this example 50 millivolt, and we got this 108.5. Then we have to calculate this 108, the digital one. Okay. So I think there is no problem in this example also. If this was the case, then we move ahead. If anyone is having any problem, please let me know. Okay. So next thing is the conversion time. As we have already talked about the conversion time, that in the SAC, the conversion time is independent of the analog signal. Okay, whatever the analog signal, it will always check the all bits. Okay, unless it will start from the MSB and continue checking each bit unless it reaches to the last bit. Okay, so what will be the conversion time? Okay. So for checking the each bit, the one clock is wasted. Okay, so if there are n bits, so how much clock cycle it will take? If there are n bits, so for checking each bit, it will take one clock cycle. So there are n bits. So how many clock cycle it will require? Obviously, it will require n clock cycles. So n into one clock cycle. So we will require n clock cycles. Okay. So what is the frequency of the clock? So or the time period of the clock? So n into one time period, that will be the number time taken by this SSE, and this is constant. Okay, one of the value of importance of this is it is constant regardless of the value of VA. Whatever the VA is smaller, it will take this much time. VA is largest, full scale value, it will take the same amount of time. Okay, so it performs the same operation irrespective of the input size. Okay, it will check all the bits. So I hope you know this. Okay, let's see what this question says. Next question is there, and it asks us what it says. Compare the maximum conversion time. Okay, remember what it says, the maximum conversion time for both. The maximum conversion time of 10 bit. So 10 bit it is talking. So digital ramp ADC and a 10 bit SAC, successive approximation ADC. It both utilizes a 500 kilohertz clock frequency. Okay, so this is the data. Okay, so we have to compare for the these two. Okay, so what about the डिजिटल रैम? डिजिटल रैम के लिए हमारा टाइम कितना लगेगा? डिजिटल रैम का मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना होता है, अगर आपको याद हो तो? सो टीसी कन्वर्जन टाइम मैक्सिमम कितना होता है इसका? मैक्सिमम कब आता है? मैक्सिमम तब आता है जब हमें सारे स्टेप्स, सपोज जब आउटपुट जो इनपुट जो हो फुल स्केल का हो, तो हमें सारी स्टेप्स चलने पड़ेंगे. टोटल स्टेप्स कितने होता है? 2 टू, अगर n बिट का है 2 to the power n minus 1. This will be the number of steps into the clock time period. Okay, so this will be the conversion time for the digital RAM. So what will be this? What will be this? We calculate this.
So here it is 2 power 10 minus 1 into what will be the time period for this? Okay, the frequency is 500 kilohertz. So if we calculate the time period, this will become 500 kilo. Okay, so this will become 2 microsecond will be taken in total. So this will become 2046 यहाँ पर लिखा हुआ है ये कैलकुलेशन यहाँ पर हो गई है मैंने आपको सारे स्टेप्स दिखा दिए सो द आंसर विल बी फॉर दिस द मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम फॉर डिजिटल रैम्प इज 2046 microsecond. Okay, so maximum conversion time for this is 2046. Okay, let's talk about the SAC. Okay, let's talk about SAC. Conversion time will be how much? Conversion time will be simply how many bits are there? N into T. So we are using 10 bits. What is the time period? 10 time period is 2 microsecond. So the conversion time will become 20 microsecond. So you can see the difference. Okay. So the conversion time for the SEC is only 20 microsecond. Okay. And this is also constant, whatever the input. And this is the maximum value, means for the full scale output it will give this much. It will take 2046 microsecond of time. Okay. So, and this is also variable. If for the smaller input, this will give less time. This will take less time, but for the larger input, it will take most of the time, maximum time. Okay. So I hope this question is clear. There's no doubt in this. Okay, so let's look the next type of SAC, not SAC, but next type of ADC. Okay, so the next type of ADC is called the flash ADC. Okay, so why it is flash? Because of its speed. Okay, so it is the fastest, highest speed ADC available. Okay, so this is the highest speed ADC available, but it requires much more circuitry than the other types. Okay, so this is having the problem. Okay, so if we see the digital ramp, if I write digital ramp DR, then we write SAC, then we write flash. Okay, so from top to bottom, if we move it, so speed increases. Okay, speed increases when we move from digital ramp to SAC and SAC to flash, the speed increases, but also the complexity also increases. Okay, so complexity also increases. Okay, so DR was simplest, then we came to SSC. So SSC is a little bit more complex than DR, and further if we see, then the flash is further complicated, and it requires more circuitry than the other two. Okay, so this is the brief comparison among the three. So let's talk about flash. So it is highest speed available, highest speed ADC available, but it requires much more circuitry than the other types. For example, a 6-bit flash ADC requires 6-bit. Okay, 6-bit flash ADC requires 63 analog operator comparators. Okay, so ये comparator क्या है? Comparator तो मैंने आप देख ही चुके हैं. ठीक है, तो ये comparator की सर्किट होती है. ये आप देख चुके हैं. ठीक है, आप पॉसिबली तो कहीं बना सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं बना सकते हैं. ओके, सो अगर हम एक 6-बिट एडीसी की बात कर रहे हैं, तो ये इसको कितने बिट चाहिए? इट रिक्वायर्स 63 कंपैरेटर्स. ओके, सो इट इज लाइक 2 पावर 6 माइनस 1, इतने कंपैरेटर चाहिए होंगे. अगर हमें n बिट का यूज कर रहे हैं, सो इट विल रिक्वायर 2 पावर n माइनस 1.
ओके, 6 बिट का यूज कर रहे थे, 63 कंपैरेटर चाहिए। अगर हम सोचो हमने 10 बिट के लिए यूज किया तो कंपैरेटर की काउंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सर्किट क्या है, बिट्स के बढ़ने से सर्किट जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। 8 बिट को कितने चाहिए, 255 चाहिए। 10 बिट को कितने चाहिए, 1023 कंपैरेटर्स। ओके, तो जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ बिट्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, इसका ये हमारा काउंट बढ़ता जाएगा कंपैरेटर्स। ओके, so but the comparator you don't you comparator is a like a complex circuit. It's not an easy circuit. Comparator itself is a complex circuitry. The large number of comparators have limited the size of flash converters. Okay, तो हम ज्यादा जैसे जैसे एक एक बिट बढ़ रही है तो कंपैरेटर साइज डबल होता जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, अगर 6 के लिए 63 चाहिए, 7 के लिए हमें 127 चाहिए हो। ठीक है, 8 के लिए 255। तो एक बिट बढ़ने से कंपैरेटर का साइज डबल होता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि हम कंपैरेटर ज्यादा बड़े साइज के कंपैरेटर यूज नहीं करते हैं। आईसी फ्लैश कन्वर्टर्स आर कॉमनली अवेलेबल इन 2 to 8 बिट यूनिट्स। ठीक है, 2 to 8 के लिए हमने बना रखा है ये, एंड मोस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफर 9 and 10 बिट्स यूनिट्स एज वेल। तो ये भी 9 और 10 का भी अवेलेबल है ये आईसी फॉर्मेट में। ठीक है, सो ये कंपैरेटर की एक थ्योरी होगी, कंपैरेटर के कौन कौन से अवेलेबल है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्यों हम ज्यादा बड़ा कंपैरेटर नहीं ये फ्लैश एडीसी नहीं बनाना चाहते हैं। The principle of operation will be described. Okay, let's see what is the principle of operation. तो यहाँ पर देखिए कि ये सिर्फ 3 बिट के लिए डिस्क्राइब हो रहा है, 3 बिट के लिए डिस्क्राइब हो रहा है। आउटपुट देखिए सिर्फ क्या है, 3 बिट का है। तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है थोड़ा, द फ्लैश कन्वर्टर फिगर हैज अ 3 बिट रेजोल्यूशन and a step size of 1 volt. Yes, we are taking step size of 1 volt. The voltage divider certain reference levels for each comparator so that there are 7 levels corresponding to 1 volt. Okay. The analog voltage is connected to the input of each of the comparator. ठीक है, चलिए मैं आपको सर्किट दिखा कर समझा देता हूँ इसको। सो देखिए कि ये क्या है, ये हमारे पास आउटपुट पहले आप यहाँ से देख लीजिए कितने 3 बिट का आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 बिट अगर जब मैं आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है तो हमारे कितने कंपैरेटर यूज हो रहे हैं, 4 plus 3 7, so it is like 2 power 3 minus 1, that is the 7. For 3 bit we need 7 comparators. Okay, one thing. Second thing is that the analog input that we are applying, which we want to convert into digital, is connected to the negative of all the comparators. You can see it here. Okay, so it is connected here. Okay, resolution, what resolution we have selected here, it is 1 volt resolution. And here what is there, okay, I leave this. Okay, so what is this, maximum supply is 10 volt, this is 3 kilo ohm resistance, then it is 1 kilo ohm, this is 1 kilo ohm, this is 1. Okay, like that it is connected. All are connected. Okay, so we have this is this will act as the potential divider. Okay, because you know that the current going inside the comparator will be how much, ये सर्किट यहाँ से कनेक्टेड है तो यहाँ पर ऐसे करंट यहाँ से आ रही है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर एक ब्रांच हो गई है, कुछ करंट यहाँ जाना चाहिए और कुछ करंट यहाँ जाना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि कंपैरेटर के अंदर करंट कितनी जाती है, द करंट गोइंग इनसाइड द कंपैरेटर इज ऑलवेज 0। ओके, so the current going inside is 0, so whatever the current is coming from here, the same current will go downside. Okay, so all the same current will flow here, all here in this line. Okay,
तो हमें निकालना है वोल्टेज डिवाइडर। आप समझते होंगे बट फिर भी मैं इसको एक बार रिवाइज यहाँ पर करा देता हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, लेट्स से वी राइट इट इज V1। ओके, इस पॉइंट का वोल्टेज देखिए 1 वोल्ट यहाँ पहले से लिखा हुआ है, लेकिन ये 1 वोल्ट कैसे हो उसको जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ये जस्टिफाई कर देता हूँ कि करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही होगी है इस ब्रांच में, क्योंकि एक ही करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि कोई करंट डिवाइड नहीं हो रही है यहाँ से। तो करंट कितनी फ्लो हो रही है हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो करंट कितनी फ्लो हो रही होगी? देखिए 10 वोल्ट का सप्लाई लगा रखी है। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3 + 1 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, सो 10 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये मैक्सिमम 10 वोल्ट है और ग्राउंड के बीच में कितने रेजिस्टेंसेस हैं? 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और सारे के सारे रेजिस्टेंसेस कैसे हैं? सीरीज में है, क्योंकि कोई भी करंट डिवाइड नहीं हो रही है, तो सेम करंट फ्लो होगी। तो आप इसको हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जो कि 10 वोल्ट का होगा, सॉरी 10 किलो ओम का होगा। ठीक है, क्योंकि सारे रेजिस्टेंसेस क्या है? सीरीज में है। तो हमारी करंट आ जाएगी, करंट कितनी आएगी? 10 वोल्ट। ओके, ये 10 वोल्ट मैंने कैसे लिख दिया मैं आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, इट इज 10 वोल्ट माइनस 0। ओके, तो यहाँ से और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया, डिवाइडेड बाई 10 किलो। So this will give us the current equals to 1 milliampere. Okay, so the current was flowing 1 milliampere. अब मैं V1 कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो V1 और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्टेड है? एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो V1 कितना हो जाएगा? V1 विल बी I into R। R कितना है? So I is 1 मिली, तो R कितना हो जाएगा? R कितना है? 1 किलो ओम, 1 K, so the answer is 1 volt। so देखिए यहाँ पर इसीलिए पहले से V1 को कितना 1 वोल्ट यहाँ पर लिख दिया गया। ये पोटेंशियल डिवाइडर से भी, ठीक है, अब मैं करंट से निकाल के दिखा रहा हूँ। ये इसको आप पोटेंशियल डिवाइडर से भी निकाल सकते हैं, मैं अभी इसके बाद बता दूंगा आपको, वो भी बता दूंगा। अच्छा, इसको अगर हम V2 कहते हैं तो V2 कितना हो जाएगा? V2 और ग्राउंड के बीच में कितने रेजिस्टेंसेस हैं? दो रेजिस्टेंसेस है, सो V2 विल बी I into 2R। okay, R plus R 2R, this will become how much? 1 milli into 2K, that will give us how much? 2 volt। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वोल्ट। ऐसे सिमिलरली इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट ऑफ ग्राउंड के बीच 3 रेजिस्टेंस है तो ये 3 वोल्ट हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ ग्राउंड के बीच 4 रेजिस्टेंस है 4 वोल्ट हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ ग्राउंड के बीच 5 रेजिस्टेंस है 5 वोल्ट, सिमिलरली 6 वोल्ट, सिमिलरली 7 वोल्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 7 वोल्ट हो जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ये वोल्टेजेस कैसे आए। तो दूसरी बात सीधे सीधे हम अगर पोटेंशियल डिवाइडर से आप देखना चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं। तो पोटेंशियल डिवाइडर आपको पता है कि करंट कहीं डिवाइड नहीं होनी चाहिए, तभी हम पोटेंशियल डिवाइडर अप्लाई करते हैं, क्योंकि ऐसे रेजिस्टेंसेस लगे हैं सपोज कई सारे। ठीक है, करंट कहीं नहीं जाना, जो करंट एक में फ्लो हो रही है वही करंट सब में होना चाहिए, तभी हम पोटेंशियल डिवाइडर अप्लाई करते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर वेरीफाई हो रही है, क्योंकि सारी सब में सेम करंट फ्लो हो रही है। तो इस पॉइंट का सपोज वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, सपोज V3 है ये। V3 का वोल्टेज क्या हो जाएगा? V3 का वोल्टेज हो जाएगा V3 और ग्राउंड के बीच में रेजिस्टेंस, तो वो कितना है? 3। V3 और ग्राउंड के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? 3K, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि जो सप्लाई की बात कर रहे हैं 10 वोल्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये है 10K, मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम सप्लाई विच इज 10 वोल्ट। तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल गिव अस द 3 वोल्ट ओनली। ऐसे ही आप किसी पॉइंट के निकाल सकते हैं। इस पॉइंट के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल वोल्ट रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ दिस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे। टोटल रेजिस्टेंस कितना है सप्लाई और ग्राउंड के बीच में? 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। सप्लाई की वैल्यू कितनी है? 10। ये पोटेंशियल डिवाइडर, ये आप जानते होंगे।
सो कैसे भी आप निकालेंगे तो ये वोल्टेजेस यही आएंगे. Okay, I hope till now there is no problem to anyone. Okay, so ये इसका बेसिक फंक्शन हो गया. तो इस वोल्टेज पर हमेशा कितना अप्लाई होगा, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पर देखिए हमेशा 1 रहेगा, यहाँ पर हमेशा 2 रहेगा, यहाँ पर हमेशा 3 रहेगा, यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा 4 रहेगा, यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा 5 रहेगा, यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा 6 रहेगा, और यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा 7 रहेगा. ये हमेशा अवेलेबल रहेगा यहाँ पर. ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है, सिर्फ हमेशा इसको अवेलेबल रहेगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगना है. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हमारा अवेलेबल होगा. अब हमने क्या किया, एनालॉग इनपुट यहाँ पर कनेक्ट कर दिया. ठीक है, एनालॉग इनपुट यहाँ से जो है कनेक्ट. अब एनालॉग इनपुट जब हम कनेक्ट करेंगे तो जब हम ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो एनालॉग इनपुट हमारा 7 होगा, 1 से लेके 7 तक होगा. ठीक है, इन 0 से लेके 8 तक हो सकता है, बहुत सारे फुल स्केल वैल्यू भी है जो 7 वोल्ट की हो सकती है, इससे ज्यादा इसका नहीं हो सकता है. ठीक है, अगर हमें 7 से ज्यादा है तो हमें या तो फिर रेजोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसका फुल स्केल वैल्यू डेफिनेटली हमें चेंज करनी पड़ेगी इसकी, ये वाली. ठीक है, तो यहाँ पर फुल स्केल वैल्यू कितनी है इसकी, 7 वोल्ट है. 7 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता. ओके, सो चलिए इसको हम कंपेयर करते हैं. सपोज अब हमने कोई रैंडम वैल्यू लेते हैं, सपोज हमने लगा दिया 3.7 वोल्ट. हमने लगा दिया क्या, 3.7 वोल्ट. ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आपको जस्ट एक पूछना चाहूंगा, आई होप यू रिमेम्बर इनकोडर्स. ठीक है, इनकोडर्स आप जानते होंगे, प्रायोरिटी इनकोडर क्या होता है वो भी आप जानते होंगे, अदरवाइज ब्रीफली मैं इसको यहाँ बताता चलूंगा. ठीक है, ओके, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू रिवाइज योर डिजिटल कोर्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड once. Okay, so I need not to explain then this priority encoder. That's why I asked you to remember that. Okay, so let's say this VA is 3.7. When VA is 3.7, so what will be the case, VA is available here. Okay, so that is 3.7, so here the output will be negative, because negative is greater than positive value, so the output here will be negative. ओके, और यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा दिया तो यहाँ पर आउटपुट आएगा हमारा क्या, पॉजिटिव. ओके, देखिए यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी नेगेटिव लगा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी हमारा सिग्नल क्या है, ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमारा 3.7 जो है वो 2 से ज्यादा है, तो नेगेटिव मिल गया. इन्वर्टर यहाँ लगा हुआ है तो ये कितना देगा, अंदर हमारा क्या मिलेगा, पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अंदर आप इसको 1 और 0 समझ सकते हैं कि I1 भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. ठीक है, और अब 3 पर हम चलते हैं, तो 3 पर क्या होगा, 3.7, तो ये भी नेगेटिव हो जाए, 3.7 इज ग्रेटर देन 3, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा. अंदर इसके अंदर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, 1 और 0 से मतलब है, अगर नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पर अब आएंगे तो क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन 3.7, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, अंदर क्या जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3.7, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0. ठीक है, तो इस केस में हमारा जो अंदर का एनकोडर का इनपुट होगा वो क्या होगा, 0 0 0 0 1 1 1. ओके, ओके, सो अब 8, ओके, सो दिस विल बी अ, ठीक है, अब ये क्या है, ये प्रायोरिटी इनकोडर है. ठीक है, अगर मैं आपको एक 3 बिट इनकोडर भी मैं आपको 3 बिट का हम बोलेंगे, जैसे 8:1 ऐसे 3 बिट का इनकोडर होता है,
आउटपुट के 3 बिट होते हैं, उसको मैसेज लिखते हैं 8:1 भी बोलते हैं, 8:1 एनकोडर, 8:1 एनकोडर, ठीक है, सॉरी 8:3, नॉट 8:1, 8:3। इनपुट उसके 3 होते हैं और आउटपुट, सॉरी इनपुट उसके 8 होते हैं और आउटपुट ओनली 3 होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल इनकोडर होता है जिस केस में 8 इनपुट है और 3 आउटपुट है। यहाँ पर भी 8 इनपुट है, 3 आउटपुट है, बट दिस इनकोडर इज लाइक प्रायोरिटी इनकोडर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो प्रायोरिटी बिट 1 होती है सिर्फ उसको सिग्निफिकेंस देता है, ठीक है। अब इन चारों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और इन दोनों का भी नहीं, क्योंकि सिर्फ ये किसको सिग्निफिकेंस देगा, ये इस वाली बिट को सिग्निफिकेंस देगा, ठीक है, इस वाली बिट को ये सिग्निफिकेंस देगा, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग डिजिटल वर्ड को वो जनरेट कर देगा। So in this case the answer will be how much? It will be 0, 3 बिट का है, ठीक है, सिर्फ ये इसके करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। मैं चाह तो रहा हूँ दिखा दूँ आपको प्रायोरिटी इनकोडर, but it will consume unnecessarily extra time. Okay, are you feeling problem with the encoder? शायद यहाँ फंक्शनिंग लिखी हो इनकोडर की, तो मैं आपको पढ़ के दिखा दूँ what it is there. Okay, let me read it through this. आपको शायद आसानी से याद आ जाए, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको फिर वो पूरा इसकी प्रायोरिटी इनकोडर की फंक्शनिंग भी दिखा सकता हूँ। For example, when VA is between 3 and 4. Okay, luckily I have also selected this 3.7. Okay. Okay, are you getting my voice? Yes, sir. Okay, okay. Okay, so let's see. For example, when VA is 3 and 4 volts, output C1, C2, C3 will be low, okay, and all other will be high. The priority encoder will respond only to low at C3, CV produce a binary output this, okay. So ये वही चीज है जो मैं आपसे, which represent the digital equivalent of this, तो वही आपकी यहाँ पर देखिए इन्होंने, तो ये 0 0 0, ये I7 हो गया आपका, I6, I5, I4, ये सारे तो क्या थे, 0 थे हमारे, ठीक है। और ये बाकी हमारा क्या था, I3, I2 एंड I1, ये हमारे 3 क्या थे, 1, ठीक है। तो अब हम इसको ये यहाँ ठीक है, इसको ये क्या कन्वर्ट करेगा, इट विल कन्वर्ट इट टू 0 1 1, ठीक है, क्योंकि ये क्या थर्ड आउटपुट है, ठीक है, ये थर्ड सिग्नल है, और 3 का डिजिटल इक्विवेलेंट क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है, ठीक है, डिजिटल इक्विवेलेंट ये होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रायोरिटी इनकोडर है, प्रायोरिटी में जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है सिर्फ उसी को इनकोड करेगा। अगर इसमें सपोज ये वाला 1 हो जाता तो सिर्फ इसके करस्पॉन्डिंग 4 के करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट हमारा जनरेट करता है, ओके। सो ये प्रायोरिटी इनकोडर और इनकोड नॉर्मल इनकोडर में ये फर्क होता है, ये सिर्फ प्रायोरिटी सब में बिट्स में जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसी पर डिसीजन लेता है, ठीक है। अगर इसमें I7 बन हो जाए, बाकी सब कुछ भी होते रहे, इट विल जनरेट द सेम आउट, ओके। तो ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बिट को देखता है, उसके बाद वाली बिट को नहीं देखता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा, लो एट C3, तो आपको देखिए वहां पर एक इन्वर्टर लगा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लो आने, C3 पर लो आने का मतलब क्या है कि अंदर क्या आएगा, वो हाई आएगा, ठीक है। C3 पर लो आने का मतलब क्या, अंदर वो हाई आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा हुआ है, तो इस बात से हमेशा याद रखिएगा। तुम्हारा क्या आ रहा है, 0 0
0 0 1 1 1, ठीक है। और इन तीनों बिट्स ये तो सारे जीरो है, तो इनका कोई डिसीजन मेकिंग रोल नहीं होगा। ये तीनों 1 है, ठीक है। और इन तीनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? इस वाले की, ठीक है। वैसे टॉप से बॉटम जा रहा है तो प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी। ये एमएसबी ये होगी हमारी, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, जैसे ये 1 होगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। ये थर्ड पोजीशन पर है तो 3 का आउटपुट क्या होगा? इट इज 0 1 1, ठीक है। सिमिलरली अगर ये 1 हो जाए हमारा, ये 1 हो जाए, बाकी देखिए, और ये सर्किट ऐसा है, एक बार में लोअर साइड के सारे 1 रहेंगे, उसके ऊपर वाला जो भी 1 होगा उसी से डिसाइड होगा। अगर ये 1 हो जाए तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा 1 0 0। अगर ये 1 हो जाए तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 0 1। अगर ये 1 हो जाए तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 1 0। और अगर हमारा ये 1 हो जाए तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा? 1 1। ओके, तो दिस इज प्रायोरिटी इनकोडर, ठीक है। और यहाँ पर एक केस भी है कि देखिए कि जब ये 1 होगा तो ऑटोमेटिकली सारे नीचे वाले भी 1 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये 1 नहीं हुआ, सपोज ये 0 ही है, ठीक है, और ये 1 हुआ और सारे 1 हो गए, इसका मतलब आप खुद ही बता सकते हैं सिग्नल क्या होगा? सिग्नल क्या होगा? ये वाला 1 हो रहा है तो सिग्नल क्या हो रहा है? इसका मतलब 6 से ज्यादा है सिग्नल, और ये 0 हो रहा है मतलब 7 से कम है। तो कोई सिग्नल ऐसा, सपोज अगर हम ले रहे हैं 6.5, अगर हम सिग्नल ले लें तो क्या होगा? ये वाला तो 1 हो जाएगा लेकिन ये 0 रहेगा, ठीक है। तो डिसीजन इस पर होगा, डिसीजन इस पर होगा, ये डिसाइड करेगा कि आंसर क्या आएगा। तो ये 6 के करस्पॉन्डिंग है तो आप 6 के करस्पॉन्डिंग 1 1 0 डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। जब ये 1 हो जाता है तो इसकी करस्पॉन्डिंग आप आंसर डायरेक्टली 1 1 लिख सकते हैं। सिर्फ प्रायोरिटी बिट ही डिसाइड कर देती है क्या आउटपुट होगा। आपको डिजिटल वर्ड आ रहा है वो पूरा देखने की जरूरत नहीं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। If there is any problem in this, you can ask right now. एक्चुअली यहाँ पर टेबल बनी हुई है कंपैरेटर की। अच्छा, ये देखिए सी से यहाँ पर कंपेयर किया है, तो बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सी से यहाँ पर कंपेयर किया है कंपैरेटर, क्योंकि कंपैरेटर आउटपुट से डायरेक्टली कंपेयर किया है यहाँ पर। तो ये बात हमेशा याद रखिए। मैं अभी आपको जो बताया वो मैंने I1 I2 I3 टर्म्स में बताया। और सी और I1 में क्या रिलेशन है? C1 में एक इन्वर्टर लगा दीजिए आप, तो आपको I1 मिल जाएगा, ठीक है। तो C1 और I1 में क्या, तो जब आप इन्वर्टर लगाएंगे, जब आप सपोज I1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जो 1 है वो 0 हो जाएगा और जो 0 है वो 1 हो जाएगा। तो आप वैसे भी देख सकते हैं, और C1 टर्म्स में देखेंगे तो ये इसका जस्ट एक इन्वर्टर रहेगा, बाकी आंसर सेम रहेगा, ठीक है। आई होप, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो अपनी एक टेबल खुद बनाइएगा, ठीक है। तो अब आप ये लिखिए, यहाँ पर सी लिखा, अगर आप वहां पर आई लिखेंगे तो 1 अपने आप 0 हो जाएगा और 0 अपने आप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आई होप कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपनी टेबल खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। और वहां पर I1 I2 I3 लिख लीजिए, और ये 1 को 0 कर दीजिए अपने आप, और 1 को 0 0 को 1 कर दीजिए, यू विल गेट द सेम टेबल व्हाट आई टोल्ड यू, ओके। तो ये डायरेक्टली कंपैरेटर आउटपुट से कंपेयर कर दिया, और मैंने आपको इनकोडर के इनपुट से कंपेयर किया, ओके। आई होप दिस इज फाइन। अच्छा, कन्वर्जन टाइम, चलिए इसका देख लेते हैं कन्वर्जन टाइम के बारे में क्या बात है। जब आपको यहाँ पर क्लॉक दिखाई दी कहीं पर, कोई क्लॉक हो डिसाइड कर रही होगी इतनी क्लॉक आ गई, इतनी क्लॉक आ नहीं आएंगे, आपको कोई क्लॉक नहीं दिखाई दी होगी, सिर्फ एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है यहाँ पर। ये द फ्लैश कन्वर्टर यूजेस नो क्लॉक, तो ये डिफरेंस है। बिकॉज नो टाइमिंग और सीक्वेंसेस इज रिक्वायर्ड, कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। द कन्वर्जन
takes place continuously. बराबर देखिए all the 7 voltages were available at the same time. ठीक है, कंपैरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेजेस थे हमारे वो पहले से ही अवेलेबल थे. ठीक है, कोई हमें डिसाइड नहीं करना था कि अब क्लॉक आएगी तब का वोल्टेज ये होगा, तब ये वोल्टेज ये होगा. कोई डिसीजन नहीं था, कोई सीक्वेंस नहीं थी. When the value of analog input changes, the comparator output will change. ठीक है, thereby using the causing the encoder outputs to change. ठीक है, सिंपल encoder combinational circuit है, तो कोई टाइमिंग डायग्राम नहीं है. हाँ, अब encoder है, comparators है, तो इनके कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, वो टाइम बस होगा स्मॉल, वो और वो टाइम बहुत कम होता है. ठीक है, हमें वहां पर क्लॉक की कोई जरूरत नहीं है. Conversion time is takes for a new digital output to appear in response to V, and it depends only on propagation delays. तो ये बस propagation delays है किसकी, कंपैरेटर के और encoder लॉजिक के. अच्छा देखिए कि हम इससे पहले वाले भी जो DAC हम यूज कर रहे थे, डिजिटल रैम यूज कर रहे थे, डिजिटल रैम की बात करें या SAC की बात करें, उन दोनों में भी हमने कंपैरेटर यूज किया था. तो वहां पर भी कंपैरेटर का डिले होगा, यहाँ पर भी कंपैरेटर का डिले. अच्छा, सारे कंपैरेटर पैरेलल में है तो डिले एक ही होगा. सीरीज में तो है नहीं कि एक का आउटपुट दूसरे में जा रहा हो तो दोनों के डिले ऐड होंगे. सारे कंपैरेटर पैरेलल में, तो एक 7 कंपैरेटर का डिले सिर्फ एक के ही बराबर होगा, क्योंकि सारे पैरेलल में एक साथ इवैल्यूएट कर रहे होंगे. एक कंपैरेटर का डिले तो उनमें भी मौजूद था, एक कंपैरेटर का डिले यहाँ भी है. सिर्फ यहाँ पर क्या है कि इनकोडर लॉजिक का डिले है, जो इनकोडर में जो भी डिले लगा थोड़ा बहुत बस वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई क्लॉक की जरूरत नहीं. For this reason, flash converters have extremely short conversion time. ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल दे रखे हैं. ठीक है, सो 20 नैनो सेकेंड एक का है, दूसरे का ये 10 बिट का अगर यूज करते 15 नैनो सेकेंड है. So okay, so only problem with this flash converter is their complexity. Okay, they demand unnecessarily very high complexity. Okay, so फ्लैश एडीसी में ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताइए इसका आंसर पहले वाले का. अब फ्लैश एडीसी डज नॉट कंटेन अ डीएसी, इज इट ट्रू और फॉल्स? True, sir. यस, यस, यस. ओके, सो दिस इज ट्रू. इसमें कोई भी डीएसी नहीं लगा रखा. हाउ मेनी कंप्यूटर वुड अ 12 बिट फ्लैश कन्वर्टर रिक्वायर, हाउ मेनी रजिस्टर्स, जल्दी बताइए कितने कंपैरेटर चाहिए होंगे इसको. 12 बिट को कितने कंपैरेटर चाहिए होंगे? फ्लैश कन्वर्टर अगर हम यूज करें, फ्लैश एडीसी यूज करें, तो कितने कंपैरेटर चाहिए होंगे 12 बिट वाले को? टू पावर 10 इज 1024. ओके, 2 पावर 10 मैं आपको बता देता हूँ. दिस इज 2 पावर 10. बताइए जी, 12 बिट को कितने कन्वर्टर कंपैरेटर चाहिए होंगे 12 बिट फ्लैश कन्वर्टर को? Sir, 4095. 4095. Okay, so comparators required will be 2 power 12 minus 1. Okay, so 2 power 10 ये है. 2 power 11 कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 2048. 2012 कितना हो जाएगा, 4096. Okay, 4096 minus 1, so it will give us 4095. Okay, so the answer for this is 4095. State major advantage, disadvantage of flash converter. I think you can state it. We have already discussed all these things. Okay. So okay, let's stop it here, and we'll meet in the next class. Seeing the remaining part of the compare ADCs, and maybe we may finish this unit also, because only the little things are there. Okay, so hopefully we'll be finishing this unit in the next class, that is tomorrow. Okay. So if you have any doubt, any question, you can ask right now, or you can ask at some other time at your okay. Okay, so thanks to all of you. So let's stop it here.